The poem, How to Tell Wild Animals, is a popular topic among Class 10 CBSE English Literature students. To gain better knowledge of the poem, Ignited Minds Tutorials has uploaded a video on YouTube discussing its explanation, poetic devices, and meaning. The poem is amusingly crafted by Carolyn Wells with the intention of helping people identify different wild animals in a playful manner. However, the poem also has a deeper message on how to tackle problems in life by staying alert and observant without panicking and making smart decisions. The video uploaded by Ignited Minds Tutorials simplifies the poem and explains the various literary devices used like metaphor, simile, and alliteration. It also emphasizes the context and provides guidance on how to decipher the poem's meaning. By watching the video, students can gain a better understanding of the poem and enhance their literary knowledge. It is recommended that students take advantage of such a resource because it is a fun and engaging way to learn and excel in English literature. Okay, people, we will start with this poem explanation of how to tell wild animals. ठीक है, आपका भाई साहब एक poem है. This was written by Carolyn Wells. ठीक है, she is a poetess and this is her date of birth and obviously her date of expiry. She is an American writer and a poet. Carolyn Wells wrote a total of 170 books. ठीक है, and during the first 10 years of her career, she concentrated on poetry, humor, and children's books. According to her autobiography, The Rest of Life, which was published in 1937, she heard that Affair Next Door, 1897, one of her Anna Catherine Green's mystery novels, being read aloud and was immediately captivated by the unraveling of the puzzle. From that point onward, she devoted herself to the mystery genre. Mystery genre मतलब एक टाइम था जब she was basically writing these things. After that, she started writing about mysteries. ठीक है, so ये तो author के बारे में है. This humorous poem एक humorous poem है, मतलब मजाकिया poem है. ठीक है, जनरली आपका Fire of Ice या Dust of Snow थोड़े strong messages वाले poems हैं. However, they are short, but they are they are conveying a very strong message. Thank you, Mr. Gaikwad. Okay, suggest some dangerous way to identify wild animals. तो कैसे हम वाइल्ड एनिमल्स को बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे. ठीक है, द पोएट गिव्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एशियन लायन एंड द बंगाल टाइगर. देन ही पॉइंट्स आउट अबाउट द लेपर्ड एंड द बियर. ठीक है, ही डिस्क्राइब्स द हाइना फॉर इट्स स्माइलिंग फेस एंड द क्रोकोडाइल फॉर इट्स टीयर्स. ठीक है, देन द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द चैमलियन चेंजेस इट्स कलर. तो चैमलियन, ये सारे एनिमल्स से आप वाकिफ हैं, राइट? एशियन लायन, बंगाल टाइगर. ठीक है, द वन विच इज हमारा नेशनल सिंबल भी है. रॉयल कभी है तो अभी अच्छा, तो रॉयल बंगाल टाइगर हमारा इंडिया का नेशनल एनिमल है. ठीक है, विच इज फाउंड इन सुंदरबंस. ठीक है, देन वी हैव एशियन लायन, लेपर्ड, बियर. ठीक है, हाइना मतलब समझते हैं, राइट? इसका स्कैवेंजर बेसिकली. ठीक है, एंड क्रोकोडाइल फॉर इट्स टीयर्स. हमारा फ्रेज भी है ना, डोंट गिव मी दोज क्रोकोडाइल टीयर्स. ठीक है, वैसे मगरमच्छ के आंसू मत रो. ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना हम. ठीक है, क्योंकि वो बहाने हैं, आंसू बहाने हैं मतलब. ठीक है, देन द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द चैमलियन चेंजेस इट्स कलर, या गिरगिट की तरह रंग मत बदलो, ऐसा हम बोलते हैं ना, मुहावरा है ये. ठीक है, चैमलियन बेसिकली अपना रंग बदलता है गिरगिट की तरह. वो मतलब एज पर द सर्कमस्टांसेस अपना रंग बदलता है ताकि वो केमोफ्लेज हो जाए. ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने एनवायरनमेंट के साथ केमोफ्लेग होते हैं. सो दे बेसिकली चेंज देयर स्किन कलर टू गेट केमोफ्लेग विद देयर एनवायरनमेंट सो दैट दे कैन नॉट बी स्पॉटेड. ठीक है, ओके. सो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम भाई साहब क्या है? द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स रिवॉल्व्स अराउंड द डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, तो डेंजरस वेज हैं कुछ वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. द पोएट ट्राइज टू डिस्टिंग्विश वन एनिमल फ्रॉम द अदर इन अ ह्यूमरस वे. एक मजाकिया अंदाज में एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स को डिस्टिंग्विश करने का पोएट का एक अंदाज है. ठीक है, द पोएट सजेस्ट दैट इट इज वेरी रिस्की टू बी इन सच अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दीज वाइल्ड बीस्ट. ठीक है, देखो बहुत रिस्की है इन वाइल्ड बीस्ट के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहना.
बिकॉज दे जनरली आर प्रेडेटर्स, ठीक है, और प्रेडेटर्स मतलब दे ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू अटैक, ठीक है, टू गेट द फ्लेश एंड ब्लड दैट दे वांट फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है, सो इट इज रिस्की टू बी इन देयर एनवायरमेंट, ठीक है। द पोएम इज दस वेरी एडुकेटिव एज इट टेल्स अस अबाउट वेरियस फीचर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, तो काफी सारे फीचर्स हमको बताता है वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, सो काफी सारा एडुकेटिव है भाई साहब, ठीक है, इट्स अ वेरी एडुकेटिव पोएम एंड इट टेल्स अस अबाउट द वेरियस फीचर्स। तो हम यहाँ पे जैसे देखो, अगर मैं बोलूँ टाइगर तो आपके माइंड में एक टाइगर आएगा, है ना, एक स्ट्राइप्स होंगे उसके, एक ऐसा एनिमल होगा जो मतलब चार पैर होंगे उसके, वो चलेगा ऐसे, तो दिस इज द इमेजिनेटिव थिंग दैट यू हैव बिकॉज यू नो व्हाट अ टाइगर इज। लेकिन अगर उल्टे तरीके से हम जाएं कि एक ऐसा बीस्ट है जिसके भाई साहब को आपने कभी टाइगर अगर नहीं देखा रहेगा, तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक से एनिमल तक पहुंच रहे हैं हम, ना कि एनिमल से कैरेक्टरिस्टिक तक, ठीक है। सो दैट इज हाउ द पोएम इज। द पोएम इज दस वेरी एडुकेटिव एज इट टेल्स अस अबाउट द वेरियस फीचर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो अभी हम देखेंगे भाई साहब स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should you advance a large and tawny beast, ठीक है, मतलब brown in color, if he roars at you as you are dying, you will know that it is the Asian lion, ठीक है, ये भाई साहब एशियन लायन होगा। कभी अगर भाई साहब जंगल में जाओगे आप ईस्ट में और ऐसा कुछ आपका टॉनी बीस्ट मतलब एक ब्राउनी कलर का बीस्ट आपको अगर दिखे एंड इट रोर्स एट यू as you are dying, ठीक है, यू विल नो दैट इट इज एन एशियन लायन, ठीक है। तो इस तरह से हम मतलब जैसे हम एक लायन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो एक अलग बात होती है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स से लायन तक जाना दैट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सो द पोएट हियर cautions the readers against the wild beasts found in the jungle. He says, ही नहीं होगा भाई साहब, she says that if by chance you happen to go to any forest in the east, किसी भी फॉरेस्ट में अगर आप ईस्ट में जाएंगे, you are likely to encounter a huge and terrible animal moving forward towards you. तो एक huge terrible animal which is moving forward towards you. You will notice that it is brownish yellow in color. तो ये आपका भाई साहब क्या होगा, ब्राउनिश येलो इन कलर होगा जैसे टाइगर होता है। दिस इज बेसिकली एशियन लायन, ठीक है। अफ्रीकन लायंस आर लिटिल डिफरेंट। एंड इफ दैट बीस्ट रोर्स लाउडली एट यू, ये भाई साहब बहुत जोर से आपके ऊपर रोर करता है, एंड यू फील दैट यू आर गोइंग टू डाई, इतना जोर से राउट करेगा भाई साहब आप डर के मारे मतलब लगेगा मर जाने वाले हम, ठीक है। ड्यू टू फियर देन यू विल कम टू नो दैट इट इज द एशियन लायन। सो डेफिनेटली हैज टू बी द एशियन लायन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। तो यहाँ पे एक ऐसा जीव है जो ब्राउनी कोट है जिसका, ठीक है, और काफी ह्यूज है, एंड इट सीम्स टू रोर एट सीइंग यू, देन इट हैज टू बी द एशियाटिक लायन, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। हम तो द पोएट सेड दैट इट इज वेरी लाइकली दैट व्हाइल रोमिंग इन द फॉरेस्ट यू आर ग्रेटेड बाय अ वाइल्ड बीस्ट. This wild animal is very impressive in size. Now we are coming to the other animal, which is basically the Royal Bengal tiger. पहले हमने यहाँ पे बात की किसकी, लायन की. Now we are talking about the tiger, ठीक है, a little different in species, ठीक है. Or if some time when roaming around, a noble wild beast greets you, एक noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, ठीक है. So भाई साहब एक black stripes है on a yellow ground, मतलब इसका खुद का सीट कोट, ठीक है, with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Discern मतलब आइडेंटिफाई करना, ठीक है. तो अगर एक ऐसा कोई बीस्ट है जिसके स्ट्राइप्स हैं और ये स्ट्राइप्स किस में है, येलो ग्राउंड में है, और वो आपकी तरफ देख रहा है और खा भी सकता है आपको, सो देन नो दैट इट इज अ रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है. बहुत बड़े टाइगर्स होते हैं ये, और इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि जिस एफिशिएंसी से ये लैंड में रह सकते हैं उसी एफिशिएंसी से ये वाटर में भी रह सकते हैं. इसीलिए आपके जो सुंदरबन एरिया है, जो बंगाल का एरिया है बेसिकली, जहाँ पे डेल्टा रीजन है, गंगा जहाँ पे समुंदर से मिलती है तो डेल्टा होता है, और इसीलिए एशिया का सबसे बड़ा स्वैम्पी रीजन है, और एशिया का सबसे बड़ा हम बोल सकते हैं रिसर्च रीजन भी है, ठीक है. वहाँ पे बहुत सारे प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है. द मोस्ट नंबर ऑफ बीस्ट और द मोस्ट नंबर ऑफ क्रीचर्स आर अवेलेबल देयर, ठीक है, काफी सारे. तो ये एशिया का सबसे वाइड जगह है, ठीक है, और यहाँ पे आपका रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है. रॉयल बंगाल टाइगर की खासियत क्या है, इट कैन सर्वाइव बोथ इन एन एटमॉस्फेयर इन लैंड एज वेल एज इन वाटर. वो आराम से वैसा पानी में तैर सकता है, ठीक है, और गहरे पानी में भी तैर सकता है. तो वो पूरा एक खाड़ी एरिया है, स्वैम्पी एरिया है, ठीक है. तो रॉयल बंगाल टाइगर इज बेसिकली फाउंड देयर.
The poet says that it is very likely that while roaming in the forest, you are greeted by a wild beast. ये wild beast से आप greeted होते हो. This wild animal is very impressive in size. मतलब ये काफी बड़ा है साइज में. रॉयल बंगाल टाइगर इज अप्रोक्सीमेटली 6 फीट. ठीक है, बहुत बड़ा है इसका साइज. एंड हिज मेजेस्टिक बॉडी इज कवर्ड विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो हाइड. इसका टेरर इसलिए है क्योंकि ज्यादा करके जो गरीब लोग होते हैं, मतलब बंगाल के आजू बाजू में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, सुंदरबन का एरिया, वहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में हनी मिलता है. ठीक है, सो हनी इज एक्सट्रैक्टेड आउट देयर. और हनी लेने के लिए बहुत दूर दराज से ये गांव खेड़े के लोग बोट से जाते हैं. स्वैम्पी एरिया तो बोट से जाते हैं, और उनको ये मालूम नहीं चलता कि कहाँ पे टाइगर है. वो अचानक भयानक में वैसे पानी से ही छलांग मार सकता है. सो काफ़ी सारे अटैक्स हुए हैं. तो देयर इज अ टेरर ऑफ दिस रॉयल बंगाल टाइगर. ठीक है, हेलो हेलो. ओके, सो स्ट्राइप्स ऑन इट्स येलो हाइड. ठीक है, तो आपका भाई साहब ये स्ट्राइप्स हैं येलो, तो ज़्यादा करके ये थोड़े डेंजरस एरियाज हैं. एक्चुअली वहाँ पे किसी भी टाइप का फिशिंग करना या हनी के लिए या फॉरेस्ट रिजर्व्स को यूज़ करना बैंड है, लेकिन लोग करते हैं वैसा क्योंकि बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है. एशिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया है और सबसे ज़्यादा रिसर्च भी वहाँ पे कंडक्ट होता है. खैर, लेकिन वहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर का भी टेरर है. अभी अगर आप एक जंगल में ऐसे जाएंगे तो वो अटैक तो करेगा ही. वहाँ पे जैसे आपके बहुत सारे और भी फॉरेस्ट एरियाज़ हैं इंडिया में जहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं, लेकिन वो सब स्वैम्पी एरियाज़ नहीं है, वो प्रॉपरली लैंड में है जहाँ पे रोड्स वगैरह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं. लेकिन इन जगहों पे अगर आपको टाइगर को देखना है तो काफ़ी खतरनाक है क्योंकि आपको बोट से जाना पड़ेगा. ठीक है, तो स्वैम्पी एरियाज़ में टाइगर्स रहते हैं, खाड़ी एरियाज़ में टाइगर्स रहते हैं. ये टाइगर्स थोड़े स्पेशल टाइप के हैं. दे बेसिकली सर्वाइव इन स्वैम्पी एरियाज़. आप जैसे गिर में जाएंगे या आपका दूसरे सेंचुरीज जो इंडिया में हैं, रणथंबोर में जाएंगे, दीज आर बेसिकली टाइगर सेंचुरीज. ये प्रॉपर लैंड एरियाज हैं, दीज आर नॉट स्वैम्पी एरियाज. अगर स्वैम्पी एरियाज में जाएंगे तो ये आपको तकलीफ देखने को मिलेगी. ठीक है, ओके. सो द पोएट कॉशंस दैट इफ द रीडर्स नोटिस दिस बीस्ट एंड दैट इफ ही ईट्स देम देन दिस सिंपल रूल विल टीच देम दैट इट इज अ बंगाल टाइगर. ये भाई साहब बहुत फेरोशियस होते हैं और इनको मालूम है कि ये बहुत पावरफुल है क्योंकि ये 6 फीट के होते हैं. ठीक है, दे आर वेरी ह्यूज टाइगर्स, और किसी पे अगर ये झपट पड़े तो गया वो. ठीक है, तो ये बहुत फेरोशियस होते हैं. दिस मतलब इनसे इनके अटैक को सर्वाइव करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. इनको डराना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. ठीक है, बिकॉज उस एरिया के ये राजा हैं. आप भाई साहब जब एकदम फर्म लैंड में है ना तो आप किसी बीस्ट के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन आप स्वैम्पी एरिया में खुद ही दलदल में हैं भाई साहब, खुद ही पानी में, आधे पानी आधे लैंड में, क्या ही लड़ लेंगे इससे. और वहाँ के ये राजा हैं. ठीक है, तो इसीलिए उस टेरेन के ये बहुत एक्सपर्ट्स हैं. तो उस टेरेन में अगर वॉर हुआ, मतलब आपने इनको इनकाउंटर किया, तो ये ही जीतेंगे 100%. ठीक है, दैट्स द रीजन इट्स सेड दैट अगर वो आपको खा जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो रॉयल बंगाल टाइगर ही होगा. ठीक है, इट विल बी दिस सिंपल रूल, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू. तो इसलिए देखिए, वो इसके पहले लायन का एग्जाम्पल ले लिया गया, तो लायन का अटैक शायद आप सर्वाइव कर लें, लेकिन ये आपको खा ही जाएगा. इसको आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि द टेरेन ऑन विच दिस काइंड ऑफ अ बीस्ट इज, इट्स डिफिकल्ट टू एनकाउंटर दिस काइंड ऑफ अ बीस्ट ऑन इट्स ओन टेरेन विच इज बेसिकली द स्वैम्पी एरिया. ठीक है, so it has to be the Royal Bengal tiger. If strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered, ठीक है, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. ठीक है, तो अगर आप स्ट्रोलिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रोलिंग मतलब हल्के हल्के आप चल रहे हैं, टू वॉक समवेयर इन अ स्लो रिलैक्स वे टूवर्ड्स फ्रॉम अ प्लेस. पेपर्ड मतलब हेयर कवर्ड विद स्पॉट्स, तो ऐसे भाई साहब इसके कोट में ऐसे स्पॉट्स होते हैं. ठीक है, टू जंप हाई और अ लॉन्ग वे, हाइट ये एनिमल स्किन है बेसिकली. इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, अगर आपने भाई साहब चलते चलते एक ऐसा बीस्ट देखा, ठीक है, whose hide with spot is peppered, जिसके भाई साहब हाइड मतलब स्किन में ऐसे पेपर्ड है, मतलब ऐसे स्पॉट्स हैं. ठीक है, as soon as he has leapt on you, you will know that it is a leopard. ये आपका भाई साहब एक लेपर्ड है, ये आपको देखेगा. It will do no good to roar with pain. अगर भाई साहब ये आपके ऊपर झपटा तो आप जितना भी चीखो चिल्लाओ भाई साहब कुछ काम के नहीं. He will only leap and leap again. ठीक है, सो ये आपके ऊपर झपट के आपको खा जाएगा. ठीक है, so if strolling forth a beast you view, so the poet here helps the readers to identify a leopard. He says that if you happen to walk in the forest,
you might encounter a beast with spots on his skin. If stalling forth a beast you view whose hide with spots is peppered. मतलब ये spot है, ऐसे skin में वैसा वैसे काले 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 spots है. So if you are strolling in the forest and you encounter a beast which has got a skin on which there are spots, so it will be a leopard. ठीक है? As soon as he has leapt on you, when this wild beast will jump at you, अगर इसने भाई साहब jump किया आपके ऊपर, you will understand that it is a leopard, as he will keep on jumping on you and will tear you apart. ये भाई साहब कूद कूद के भाई साहब आपको tear apart कर देगा. ठीक है? So you will know that it is a leopard. It will do no good to roar with pain. Moreover, it will be of no use then to shout or cry. आप कितना ही चीखो चिल्लाओ कुछ नहीं कर पाओगे. With pain because he will continue pouncing on you. ये कूद कूद के भाई आपको पटक देगा और पटक के चीर फाड़ कर देगा. ठीक है? So be careful and don't allow it to leap on you. ठीक है? He will only leap and leap again. भाई साहब ये आपके ऊपर कूद कूद के आपको मतलब इसी तरह से वो शिकार करता है. ठीक है? वो कूद कूद के भाई साहब इट इज नॉट अ वेरी फास्ट रनर. ठीक है? लेपर्ड आपका फास्ट रनर नहीं होता, लेकिन लेपर्ड की एक खासियत ये है कि वो फटाफट पेड़ पे चढ़ जाता है. ठीक है? तो मतलब अगर आप लेपर्ड को अवॉइड करने के लिए पेड़ पे भी चढ़ रहे हो तो कोई मतलब कुछ नहीं कर सकते, वो वहां से भी आपको निपटा देगा. ठीक है? सो दैट इज हाउ इट इज वेरी डेंजरस. ठीक है? लेपर्ड तो भाई साहब आपको सब जगह मिल जाते हैं. आपके यहाँ पे भी योर हिल्स में मिल जाएंगे. ठीक है? थोड़े बहुत आपके थाने में आपने सुना रहेगा तेंदुआ आया तेंदुआ आया. एक दिन तेंदुआ आएगा और 5 दिन न्यूज़ चैनल वाले उसकी दिखा के रिपीट करके दिखाते रहेंगे. ठीक है? अरे थाने में तेंदुआ निकला, ये बड़ा बड़ा तेंदुआ है. तो ये लेपर्ड्स जो है वो काफ़ी कॉमन है. ठीक है? दे आर नॉट एन एंडेंजर्ड स्पीशीज. ठीक है? द पोएट्स ओके इफ यू वर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर who hugs you very very hard, be sure it is a bear. ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन एक फ्रेज है जिसको हम बियर हग बोलते हैं. ठीक है? बियर हग मतलब जोर से किसी को हग करना. ठीक है? दैट इज कॉल्ड अ बियर हग. और लोग ऐसा मतलब एक फ्रेज है ये बियर हग. ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि बियर आपको देखेगा तो हग करेगा. वैसा वो भी बहुत फेरोशियस एनिमल है. इनफैक्ट इट इज मोर पावरफुल देन अ लायन. ये बात और है कि वो ह्यूमन स्पीशीज को हंट नहीं करता है. ठीक है? लेकिन वो थोड़ा आलसी क्रीचर है, बट इट इज वेरी पावरफुल. ठीक है? Works very very hard, be sure it's a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. ठीक है? A gentle loving touch. ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब. भाई इन लोगों ने अगर एक पंजा मार दिया ना तो गए. The poet says that while you are walking in your yard you may encounter a creature there. ठीक है? When this creature hugs you very tightly then believe that it is a bear. ये थोड़े से सुस्त होते हैं. ठीक है? दे आर नॉट वेरी रनिंग टाइप ऑफ क्रीचर्स. बहुत ज़्यादा दौड़ते नहीं हैं ये, सुस्त रहते हैं. कभी कभी तो हाइबरनेशन मोड पे भी चले जाते हैं. ज़्यादा करके ये अपना क्या कहते हैं हनी खाते हैं. ठीक है? तो दे आर नॉट वेरी फेरोशियस बट दे आर वेरी पावरफुल. ठीक है? दे आर डेफिनेटली वेरी पावरफुल. बियर्स आर थॉट टू बी गुड रेस्लर्स एंड कैन गिव अ रियल टाइट हग, ऑल्दो अ फ्रेंडली हग इज रेफर्ड टू एज अ बियर हग. ज़्यादा करके जो फ्रेंड्स में हगिंग होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बियर हग्स. ठीक है? इफ अ रियल बियर हग्स यू देन इट मे नॉट फील फ्रेंडली एट ऑल. अगर किसी ने भाई साहब सच में ही किसी बियर ने हग किया तो वो आपको चीड़ फाड़ी कर देगा. ठीक है? द बियर हग्स अ मैन टू किल हिम. द पोएट फर्दर सेज दैट इन केस ऑफ एनी डाउट यू विल फाइंड दैट द बियर विल एम्ब्रेस यू वंस अगेन टिल डेथ. तो भाई साहब वो जब तक मर ना जावे तब तक भाई साहब पकड़ के रखेगा. ठीक है? बियर हग बोलते हैं हम इसको. सो ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस. एक और अगर आपको कोई कभी डाउट भी आता है कि ये क्या है ये क्रिएचर, इट विल गिव यू अनदर हग टिल अ पर्सन डाइज. ठीक है? सो दीज आर डेंजरस एनिमल्स एंड द पोएट इन अ वेरी फनी वे इज ट्राइंग टू बेसिकली इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से इनको आइडेंटिफाई करा रही है. ठीक है? ओके. दो टू डिस्टिंग्विश बीड्स ऑफ प्रे अ नॉवाइस में माइट नॉन प्लस. तो नॉवाइस मतलब बिगिनर. ठीक है? माइट नॉन प्लस थोड़ा पजल्ड हो सकता है. ठीक है? नॉवाइस मतलब जो जिसको मालूम नहीं है. ठीक है? द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द, ठीक है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना thus हाइनास कम अप विथ मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स. ठीक है? तो ये हाइनास का भाई साहब ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है, ये बहुत गंदा लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों. ठीक है? ओके. और ये क्रोकोडाइल्स वैसा वैसे रोते हुए नजर आएंगे आपको, लेकिन दोनों भी बहुत खतरनाक हैं. ठीक है? वन इज डेफिनेटली अ स्कैवेंजर एंड द अदर वन इज बेसिकली मीट ईटर. ठीक है? सो दे ऐसा मतलब बहुत दुखी आत्मा है, इनको देखने से ऐसा लगेगा. क्रोकोडाइल्स भाई साहब 6-7 घंटे बिना थोड़ा भी हिले ऐसे पड़े रह सकते हैं. 6-7 घंटे क्यों, कभी कभी 12 घंटे तक ऐसे ही पड़े रह सकते हैं वो.
आपको लगेगा मर गया है क्रीचर, ठीक है, इट हैज डाइड बट इट एक्चुअली नॉट डाइड, ठीक है। सो ये एकदम डिप्रेशन में नॉन स्टिल मोशन में ऐसे रहते हैं, ठीक है, एकदम स्टिल, ठीक है, एकदम आपका भाई साहब स्टिल में रहेंगे और आपको लगेगा कि दुखी आत्मा है, बेसिकली रोता हुआ है कोई क्रीचर, लेकिन इट इज एक्चुअली वेरी पेशेंटली वेटिंग फॉर इट्स प्रे, ठीक है। हाइनास दे माइट हैव अ वेरी स्माइली फेस बट दे डू नॉट हैव अ वेरी फ्रेंडली नेचर, दे आर मीट ईटर्स, ठीक है। ओके, सो एक पैक ऑफ हाइनास कैन एक्चुअली किल अ टाइगर और मे बी अ लायन, ठीक है, और ये करते भी हैं जब ये एक पूरे पैक में होते हैं, ठीक है, वुल्फ पैक बोलते हैं हम, हाइनास का पैक बोलते हैं, ज़्यादा करके इनका एक पूरा वो होता है, ग्रुप होता है, दे मूव इन अ ग्रुप एंड दे कैन ब्रिंग डाउन इवन द फेरोशियस टाइगर और अ फेरोशियस लायन डाउन, ठीक है। ओके, सो दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे अ नॉविस जो बिगिनर है माइट नॉन प्लस, कभी कभी जो एक नया इंसान है जिसको जंगल क्रीचर या जंगल्स के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है, नॉविस, ठीक है, वो कभी कभी भाई साहब पजल हो सकता है, वो कंफ्यूज हो सकता है कि ये तो बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा है भाई साहब, बहुत फ्रेंडली वाला होगा ये, ठीक है, ये तो बड़ा एकदम डिप्रेशन वाला क्रीचर लग रहा है, ये क्या ही किसको मारेगा, ठीक है, ऐसा पजल हो सकता है। या किसी नए इंसान को जिसको जंगल या जंगल के जानवरों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो पजल या कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना, ठीक है, दस हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स, मेरी स्माइल्स मतलब ये मुस्कुराते हुए चेहरे हैं इनके, ठीक है। बट इफ दे वीप, और कुछ क्रोकोडाइल्स होते हैं जो ऐसा लगता है कि रो रहे हैं, बेसिकली एकदम पूरे डिप्रेशन में है, एक्चुअली बोलते हैं ना क्रोकोडाइल टीयर्स, डोंट क्राई दोस क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू मत रो, ठीक है। द पोएट हियर सेज दैट द रीडर मे बी पजल्ड एंड कंफ्यूज्ड and thus might not be able to distinguish between the different wild animals। तो डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स के डिफरेंट नेचर्स होते हैं और उन नेचर्स के बेसिस पे शायद पोएट डिस्टिंग्विश ना ही कर पाए, ठीक है। हेंस द पोएट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट द क्रोकोडाइल्स फ्रॉम द हाइना। तो कैसे क्रोकोडाइल को हाइना से डिफरेंशिएट करना है, ही सेड दैट अ हाइना ऑलवेज लाफ्स एज इट swallows its victim। हंसते हंसते भाई साहब किसी को खा जाएगा ये, ठीक है, तो ये हंसते हंसते भाई साहब खा जाएगा किसी अपने विक्टिम को। अ लाफिंग हाइना's वॉइस रिजेंबल्स ह्यूमंस लाफिंग साउंड, ठीक है। एक्चुअली में मतलब ये कंपैरिजन ड्रॉ किया है कि हम जैसे हंसते और जो आवाज आता है हाइनास का आवाज भी बिल्कुल वैसे ही है। अ क्रोकोडाइल ऑन द अदर हैंड इज सेड टू शेड टीयर्स व्हाइल ईटिंग इट्स प्रे। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब वो खाता है, उसका जबड़ा इतना भाई साहब बड़ा है, तो ऑब्वियसली जब वो खाता है तो उसके टीयर्स गिरते हैं। टीयर्स गिरने का कारण ये नहीं है कि वो दुखी है, टीयर्स गिरने का कारण एक साइंटिफिक रीजन है, इतना बड़ा जबड़ा जब वो खोलेगा, ठीक है, तो उसके लिए होता है। द पोएट दस वांट्स इट द रीडर्स टू नॉट वेट फॉर अ हाइना टू लाफ और फॉर अ क्रोकोडाइल टू वीप, ठीक है। अ वीपिंग क्रोकोडाइल और अ लाफिंग हाइना बोथ आर वेरी डेंजरस, ठीक है, ऑल्दो दे माइट सीम टू बी। अभी भाई लाफ कौन करेगा भाई साहब, जो खुशी खुशी रहेगा, वो कहें वो हंट करेगा भाई साहब, ठीक है, लेकिन वो करेगा, ठीक है। वीप कौन करेगा, जो दुखी आत्मा है भाई साहब, लेकिन और वो क्या ही मतलब किसी का हंटिंग करेगा, लेकिन वो करेगा ही करेगा, ठीक है। सो डोंट गो बाय देयर एक्सटर्नल अपीयरेंसेस because these appearances are deceptive and they will exactly act in the opposite way, they will hunt their prey and they will feast on it, ठीक है। Okay, now it comes to basically a chameleon। chameleon basically क्या होता है, जो अपना रंग बदले, ठीक है। the true chameleon in small a lizard sort of a thing, तो एक lizard की तरह होता है छोटा सा। he hasn't any ears at all, इसको भाई साहब कोई भी कान नहीं है, and not a single wing भी नहीं है, उड़ भी नहीं सकता, ये सुन भी नहीं सकता, उड़ भी नहीं सकता। If there is nothing on the tree is the chameleon you see। तो कभी कभी जब पेड़ पे कुछ भी नहीं दिखता है तो what you see is basically a chameleon, ठीक है। The poet describes a chameleon in this stanza। He says a chameleon is a small garden lizard। एक small garden lizard की तरह होता है भाई साहब chameleon, ठीक है। It doesn't have ears or wings, ठीक है। The poet further says that if you are unable to see a thing on the tree then chances are that a chameleon is sitting there, ठीक है। अनेबल टू सी एनीथिंग देयर मतलब उसमें कोई कीड़े नहीं दिख रहे हैं आपको, कोई भाई साहब आपको बटरफ्लाई नहीं दिख रहा है, या कोई भाई साहब आपको मधुमक्खी नहीं दिख रहा है। अगर ये सब आपको ट्रीज में नहीं दिख रहे हैं तो मान लीजिएगा कि वहाँ पे एक चैमेलियन बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ये सब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दे वुड बी एन ईजी प्रे टू इट, ठीक है। वो उनको खा जाएगा, इसलिए वो और कोई उसके नज़दीक नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट सेज, ठीक है। A lizard ears at all and not a single wing if there is nothing on the tree। तो अगर आपको एक ट्री में कुछ भी नहीं दिख रहा है
तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट इज अ chameleon is sitting there, ठीक है, because it will hunt them down. Then chances are that a chameleon is sitting there. A chameleon is an expert at camouflage. Camouflage मतलब समझ में आता है जो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ मर्ज कर जाए. जैसे देखो ये आर्मी वाले जिस तरीके का ड्रेस पहनते हैं, ग्रीन 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 ग्रीन, वो एक कैमोफ्लेज ड्रेस है, ठीक है. इनको ज़्यादा करके जंगलों में इनकाउंटर करना पड़ता है. जंगलों में भाई साहब इनको जितना भी फाइट होता है, अगर ग्राउंड इन्फेंट्री की बात करें हम, तो इसीलिए उनका कैमोफ्लेज के लिए वो करते हैं ताकि वो इजीली स्पॉट आउट ना हो, ठीक है. इसी तरह से इनका भी कैमोफ्लेज है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ. किसके लिए? दो चीज़ों के लिए. एक तो अपने खुद शिकार ना हो जाए, और दूसरा भाई साहब दूसरों का शिकार कर सके, है ना. बोथ द रीजंस, सो दैट their preys cannot spot them and so that their predators also cannot spot them, ठीक है. तो that is the reason of camouflage, ठीक है. It changes color as per its surroundings and is therefore difficult to see. तो अपने सराउंडिंग के हिसाब से ये अपना कलर चेंज करते हैं and is difficult to see. This capacity of camouflage helps the lizard in saving it from the hunters. तो ये lizard को हेल्प करता है in saving it from their hunters, ठीक है. क्लियर है? So this is basically the property of a camouflage. आपने देखा रहेगा गिरगिट के रंग बदलते हैं, ओके. तो भाई साहब अगर स्टाइल की बात करें तो स्टाइल ऑफ द पोएम इज ह्यूमरस. ह्यूमरस है भाई साहब. दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स. द यूज ऑफ वर्ड्स एंड इमोशंस आर नॉट ओनली ह्यूमरस बट आयरॉनिकल एज वेल. कहीं कहीं पे आयरनी भी है, जैसे हाइना का स्माइल या क्रोकोडाइल का टीयर्स, ये सब आयरनी है, ठीक है. अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है. इट इज आयरनिकल दैट द नोबल बंगाल टाइगर ईट्स यू द मोमेंट ही सीज यू. तो हम नोबल क्यों बोल रहे हैं फिर उसको, ठीक है, अगर, लेकिन उसका नेचर ही है वो भाई साहब, ठीक है. किसी जानवर का हंटिंग जो है वो नेचर ही है उसका, ठीक है. इट डज नो गुड टू रोर विद पेन व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ अ स्पॉटेड लेपर्ड, ठीक है. द फ्रेंडली हग ऑफ द बियर इज डेडली. ये फ्रेंडली हग हम इसको बोल रहे हैं, बियर हग बोल रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज डेडली. The weird but merry smile of hyenas and the weeping crocodiles trap their victims to death. तो पूरे पोएम में आप ह्यूमरस वे से आयरॉनिकल भी हैं, ठीक है. तो स्माइलिंग हाइनास बोल रहे हैं हम, वीपिंग आप भाई साहब बोल रहे हैं क्रोकोडाइल्स, ठीक है, या बियर हग जिसको हम बोल रहे हैं, दैट इज ऑल वेरी डेंजरस, ठीक है. द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ABABCC. ये आप लोकेट कर पाएंगे भाई साहब? डू आई नीड टू शो दिस टू यू? ओके. तो स्टैंजास का राइमिंग स्कीम क्या है भाई साहब? ABABCD. द पोएट टेक्स लिबर्टीज विद द लैंग्वेज टू क्रिएट द डिजायर्ड पोएटिक इफेक्ट. फॉर एग्जांपल, द वर्ड्स लेपे एंड लेप इन द थर्ड स्टैंजा आर डेलिबरेटली नॉट स्पेल्ड करेक्टली टू क्रिएट द राइमिंग इफेक्ट. कभी कभी ये होता है भाई साहब, राइमिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आप स्पेलिंग से भी कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लेपे एंड लेप इन द थर्ड स्टैंजा आर नॉट स्पेल्ड करेक्टली. जैसे अगर आप शेक्सपियरियन इंग्लिश में देखोगे तो शेक्सपियर वैसे लिखेगा, वर आर्ट दाउ गोइंग, ठीक है. इसका मतलब है वेयर, इसका मतलब है यू, वेयर आर एक्चुअली, वेयर आर. दाउ मतलब होता है वैसे अब यू, ठीक है, गोइंग, ऐसा है. तो पोएटिक इफेक्ट के लिए कभी कभी हम स्पेलिंग से कॉम्प्रोमाइज करते हैं. सो दिस इज अ बेसिकली evidence of it. Okay, the poetic device used in the poem are, क्या क्या हुआ है भाई साहब? rhyme, allusion and alliteration. rhyming scheme of the poem आप देखोगे अगर chance, east, तो ये हो गया A B. advance, chance के साथ भाई साहब advance, ठीक है. east के साथ beast, तो A B, ठीक है. फिर dying, फिर lion, C, ठीक है. क्लियर है? तो ये सब आपका भाई साहब पोएम A B हो गया. The poetic device used in the poem rhyme, allusion. Allusion means reference to a famous thing, a place, a species of animal and is used in the poem as Bengal tiger, ठीक है. तो यहाँ पे हमने भाई साहब allusion means reference to a famous thing. तो Royal Bengal tiger is something which is very famous. It is also the national animal of India, ठीक है. तो इसको हम allusion बोलेंगे. It is basically reference to a famous thing, a species of animal and is used in the poem as Bengal tiger, ठीक है. यहाँ पे हमने पोएम में बंगाल टाइगर के हिसाब से यूज किया. The poetic device used in the poem are rhyme, allusion. Alliteration कैसे यूज हुआ है? The device alliteration means the repetition of consonant sound, ठीक है. और repetition of vowel sound को हम क्या बोलते हैं? Assonance, ठीक है. Repetition of vowel sound को हम बोलते हैं भाई साहब assonance, और repetition of consonant sound को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? Alliteration.
that is it is used as R at start of two or more closely connected words which are roaming around, ठीक है, roaming around, ठीक है। तो इसमें भाई साहब देखो ऑलिट्रेशन यूज हुआ है, R से स्टार्ट हुआ है तो कॉन्सोनेंट साउंड अपीयर हुआ है, ठीक है। ओह ये तो एंड हो गया रे, खत्म हो गया, आप लोगों का भी एंड हो गया भाई साहब, दी एंड। हाँ, डनम डनम डनम, just one minute.